کرتے ہیں. کل کے سپارے کے آخر میں سورہ یاسین شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم نے وہاں پہ اس لیے بات نہیں کی تھی کہ آج ایک مکمل سورت کی شکل میں ہم بات کر لیں. یہ وہ صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ ابھی ہم جب آگے چلیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے. سورت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. رحیم اس لیے کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں ساری ہدایت لکھی ہوئی دے رہا ہے، پرنٹڈ تمہارے ہاتھ میں اس وقت پہنچا دی ہے. اس سے زیادہ بھی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے. آگے اس لیے کہ سوچ ہی نہیں رہے کہ آگے ان کے سامنے کیا کیا پیش ہونے والا ہے، اور پیچھے اس لیے کہ ایک پورا ماضی ہے جس میں اتنے قصے سنائے جا رہے ہیں، اتنی قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بار بار خبردار کیا جا رہا ہے، کسی چیز سے سبق نہیں لیتے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک دن تو مردے زندہ ہوں گے، ایک دن تو سامنے آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ سارے افعال جو کام انہوں نے کیے ہیں اور وہ آثار جو وہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں سب نکال کے لے آئیں گے. افعال میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہم نے اعمال کیے ہوتے ہیں اپنے لیے، اچھے برے جو بھی کیے ہیں. ایک نقوش ہوتے ہیں جو ہم چیزوں پر چھوڑتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر نیکی کے لیے چلے تو زمین پہ، اور اگر مسجد کی طرف سفر کیا تو جتنے قدم لیے، علم کی تلاش میں گئے تو کتنے قدم لیے. اس کے علاوہ آثار یہ ہوتے ہیں جو ہم میں سے کوئی رواج یا نیکی یا برائی چھوڑ جاتا ہے، اپنے گھروں پہ اثرات ڈالتے ہیں، اپنے دوستوں پہ ڈالتے ہیں، اپنے ملنے والوں پہ ڈالتے ہیں. جہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہاں ہمارے اثرات ہوتے ہیں. ہم کہیں بھی ہوں، ہر انسان اپنے آثار چھوڑ کے جا رہا ہے، یا وہ اچھے ہیں یا وہ برے ہیں، اور پھر وہ نسلوں تک چلتے ہیں، نسلوں تک چلتے ہیں. اگر میں نے خاندان کے اندر کوئی ایسی بات کی جس کی وجہ سے کوئی گھر ٹوٹا، کسی کا دل خراب ہوا، تو اس کے اثرات پھر بچوں پر، بچوں کی وجہ سے ان کے بچوں پر، اور خاندان میں کہاں کہاں تک میری بات گئی، وہ سارے اثرات ہیں. اور اگر میں نے کوئی اچھی بات بتا دی اور وہ میں بھول گئی، اور وہ کسی نے کسی کو بتائی، اس نے کسی اور کو بتا دی، اس نے اپنے بچوں کو سکھا دی، مجھے نہیں یاد، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ساری چیزیں جمع کرنا. اللہ تعالیٰ وہ سارے آثار جمع کر کے لے آئے گا. پھر اس کے بعد مثال دی گئی ہے کہ ایک بستی ہے، اس کا رویہ، اور اسی بستی میں ایک شخص ہے، اس کا رویہ. بستی کا رویہ یہ ہے کہ جھٹلایا، گھمنڈ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک دھماکہ ہوا اور وہ بجھ کر رہ گئے. اس میں ایک شخص، یہ وہ شخص ہے جس کا نام بھی ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن اس شخص کی خاص بات کیا تھی؟ دوڑتے ہوئے آیا اور فکر یہ ہوئی کہ میں لوگوں کو نصیحت کر دوں، میں کسی کو کچھ بتا دوں. نظر آ رہا ہے کہ پوری بستی ماننے کو تیار نہیں ہے اور میں اکیلا ہوں، لیکن اس کے باوجود حق کا اعلان بھی کرتا ہے، لوگوں کو توجہ بھی دلاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس طرف آ جاؤ، دیکھو اس کی بات مان لو. اور پھر جب اس کی نہیں مانی جاتی تو وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن وہ آخر میں بھی یہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگوں کو سمجھ آ جاتی. وہ خیر خواہی اس کی ساری زندگی حتیٰ کہ مرتے دم تک رہتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اسے مغفرت بھی دی اور اسے وہ عزت بھی دی جو دنیا میں اس کو نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ملی جا کے. پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ دیکھو یہ جو ساری چیزیں تم استعمال کرتے ہو نا، جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کیا اپنی مرضی سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے. وہ جو جہاز اڑاتے ہوئے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہو، تو وہ کس کی مشیت اور کس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں یہ کرنے دے رہا ہے. اور جو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھانے سے لے کے پینے سے لے کے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ملتی چلی جا رہی ہیں. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی، اس دن وہ ساری چیزیں تو میرے اختیار میں ہیں ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کفار کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آخرت کو نظر انداز کرتے ہیں، رب کی آیات سے اعراض کرتے ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے اس طرف آؤ تو توجہ نہیں دیتے، پھر خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. اور پھر یہ کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کو آخرکار اللہ کے پاس آنا ہے. اس کے بعد سورہ یاسین کا وہ اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے. ہم نے پڑھا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں کو سناؤ، یعنی جو شخص اس وقت عالم نزا میں ہو اور یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ اللہ کے پاس روانہ ہونے والا ہے، اسے سورہ یاسین سنائی جائے. کیوں سنائی جائے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ یاسین جو اس فرد کو سنائی جا رہی ہوگی جو اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا کہ اب میں کدھر سے کدھر جا رہا ہوں. اور دوسری یہ کہ جو شخص پڑھ رہا ہوگا یا سنا رہا ہوگا، اس کے سامنے تذکیر ہوگی کہ یہ شخص جا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے بھی جانا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ تو آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے اور تذکیر ہو گئی. ابھی ہم آگے بہت ساری صورتیں مزید آئیں گی، سورہ واقعہ، سورہ ملک، ہم اس میں بھی یہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں نا، وہ اس لیے رکھی ہیں کہ یہ پڑھ کے تمہیں سمجھ آئے گی، یہ پڑھ کے تمہارا عقیدہ درست ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میں نے 10 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ کر لیا اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر مطلب کیا ہے. تو موت کے وقت کی جو تذکیر ہے نا، یہ مرنے والے کے لیے بھی اور زندہ کے لیے بھی ہے. اور دو طرح کے موضوعات آتے ہیں. پہلے یہ کہ کیا ہونے والا ہے، سور پھونکا جائے گا، چاہے وہ موت کا وقت ہو چاہے وہ سور کا وقت ہو، وقت تو حساب کا شروع ہو گیا.
दूसरी बात एक इंसान पूछेगा किसने मुझे उठा के खड़ा कर दिया, ये क्या हुआ, ये कौन सी दुनिया आ गई, और सबको हाजिर कर दिया जाएगा। सब मौजूद होंगे, बदले का वक्त बस आ पहुंचा है। अब सब बताएंगे क्या क्या लेकर आएंगे। जो जन्नती लोग हैं वो तो मज़े में होंगे अपने रब के पास, जो मुजरिम हैं उनको छांट के अलग कर दिया जाएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें हिदायत नहीं दी थी, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे सामने सब कुछ खुला हुआ नहीं था। और अहम तरीन बात यह है कि इंसान अपने मुंह से गवाही नहीं दे सकेगा। इतने लंबी तकरीर मैं कर सकती हूँ मेरे हक़ में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी तारीफ़ें करने के लिए, अपने रीजंस देने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, ज़बान नहीं। जहाँ ज़रूरत होगी ज़बान की गवाही की वहाँ ले ली जाएगी, लेकिन मुंह बंद कर दिया जाएगा। हाथ से पूछा जाएगा कहाँ इस्तेमाल हुए, पाँव से पूछा जाएगा कहाँ चले, खुद ही आज़ा बता देंगे क्या क्या करते चले आए। अव्वल तो अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हुज्जत पूरी करने के लिए मेरे आज़ा ही बता देंगे। और उसके बाद फिर अगली चीज़ ये कि अल्लाह ताला तवज्जो दिलाता है उन हकीकतों की तरफ जो तुम दिन और रात देखते हो। पहली तो ये कि अगर अल्लाह चाहे तुम्हारी बीनाई ले ले, तुम देख ही ना सको, तुम पढ़ ही ना सको, तुम सोच ही ना सको। इस वक्त जो मैं और आप कुरान पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसा हो सकता है कभी खुदा न खास्ता कि मुझे मौका दोबारा ना मिले, अल्लाह ना करे, वो किसी छोटी सी शक्ल में मेरी आंख में कोई एलर्जी हो गई, मेरे सर में कोई दर्द शुरू हो गया, मेरे साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया, मैं अगले साल ना पढ़ सकूं। क्या इसका चांस नहीं है? हो सकता है ना ऐसा। और हो सकता है कि जो मोहलत आज मिली है वो पता नहीं अगले महीने और अगले साल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और इतनी सहूलत जो अभी है वो फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही फरमाया कि अल्लाह ताला अगर तुम्हारी बीनाई ले ले, अल्लाह ताला अगर तुम्हारी चीज़ें मस कर दे, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत हाल ख़राब कर दे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। और फिर फरमाया कि जिसको हम लंबी उम्र देते हैं, उसकी साख्त को हम उलट देते हैं, वो पलट जाता है बिल्कुल। बहुत समझदार, बहुत होशियार, बहुत तेज, बहुत फैसले करने वाला, बहुत अक्ल वाला, वो कैसे पलटता है कि अपना नाम भी भूल जाता है, बात भी सही करने के काबिल नहीं रहता, सोचने के भी काबिल नहीं रहता। क्या ये निशानी नहीं है? और उसके बाद ये कि जिसने जिंदा पहले किया था, जिसने पहले बनाया, वो दोबारा भी वैसे ही खड़ा कर लेगा। वो उसी तरह जब वो एक दफ़ा मेरी आँख, कान, नाखून, जिस्म बना सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि एक दफ़ा बनाऊं या 2 दफ़ा बनाना है। समझने की बात यह है कि तुम सब ने उसकी तरफ पलटना है, बारी बारी, एक के बाद एक। कल मेरी नानी थी, फिर मेरी अम्मी, फिर मैं, और पता नहीं किसकी बारी पहले और किसकी बारी बाद में। जाना तो है, खड़ा तो होना है। तो अगर ये समझ के पढ़ी जाए और वाक़तन उस वक्त पढ़ी जाए ना जब कोई आपके सामने दुनिया से जा रहा हो, तो इससे बड़ी तस्कीर नहीं हो सकती। जब इंसान को नज़र आ रहा हो कि ये जा रहा है और मैं पीछे। यहाँ पे सूरह यासीन मुकम्मल होती है और सूरह साफ़ात शुरू होती है। ये भी मक्की सूरत है और इब्तिदा में एक बड़ा हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला के करिश्मों का जिक्र है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सूरह रात में भी आपने मुझे लिख के भेजे थे। इस सूरत में सख्त तंबीह की गई है क्योंकि जो हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे वो बहुत सख्त थे, बहुत शदीद मुखालफत थी। फरमाया कि एक दिन तो यौम जज़ा आना है और हम सब का फैसला कर देंगे, इन सबको जहन्नुम का रास्ता दिखाइए। और फिर ये बताया कि सबका अंजाम कार क्या होगा, लेकिन जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होंगे वो बिल्कुल भी नामुराद नहीं होंगे, और अल्लाह ताला उनको वो सारी नेमतें अदा करेगा जो वो चाहते हैं, जिसके लिए वो दुनिया में दौड़ धूप करते हैं। और जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें उनको देगा, बेहतरीन रिज़्क़ देगा, इज्जत देगा, जिसके लिए इंसान कितनी कोशिश करता है ना। उसके बाद ये कि अल्लाह जन्नतों में तकिए लगाए आराम से बैठे होंगे, एक बेज़रर नुकसान ना पहुँचाने वाली शराब होगी, खूबसूरत औरतें होंगी। और फिर आगे फरमाया ये अजीम उस शान कामयाबी है, ये है कामयाबी। लेकिन जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे वहाँ पे ज़क़ूम, एक जहन्नुम का दरख्त है, उसका खाना खाना होगा, पानी मांगेंगे तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, दोज़ख की आग में जलाए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। तो कामयाबी तो असल में ये है ना, कामयाबी ये नहीं है कि अभी क्या किया, कामयाबी ये है कि अभी करके क्या पा लिया। और उसके बाद फिर इसी में आखिर में जो मिसालें दी हैं, तमाम अम्बिया का जिक्र किया है, लेकिन कुरान की ख़ास बात यह है कि वो हर किस्से को मौके के लिहाज से एक अलग एंगल से समझाता है हमें। अगरचे हमने ये किस्से पहले पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो तज़किरा आया है तमाम किस्सों का, वो ये आया है कि अल्लाह उनकी पुकार सुनता रहा है, अल्लाह इन तमाम अम्बिया के साथ रहा है। हज़रत नूह ने पुकारा, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, सुना। और हज़रत इब्राहीम के बारे में तो है कि जब अल्लाह ताला ने उनके लिए आग भी ठंडी की और जब बेटे की आजमाइश भी उनसे की कि वो बेटे को ज़िबा करें, तो उसकी जगह मेंढा भी आ गया। फिर उसके बाद हज़रत मूसा का वाक़या हमने पढ़ा कि जिस तरह समंदर से अल्लाह ताला ने उनको निकाला, नुसरत दी, हिदायत दी। हज़रत इलियास को ना मानने वालों को अल्लाह ताला ने पकड़ की, हज़रत लूत को अज़ाब से बचाया, हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकाला। तो ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला अपने अहले ईमान को तनहा छोड़ दे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के रास्ते में आप चलेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कि अच्छा जो हो रहा है तुम करो। नहीं, अल्लाह खड़ा होता है आपके साथ, अल्लाह आसानी करता है, और अल्लाह वहाँ से मदद करता है जहाँ से आपने सोचा नहीं होता। और फिर फरमाया कि इन सब के लिए बाद में हर किस्से के बाद ये 3 लाइनें आई हैं, हमने बाद की नस्लों में इनका जिक्र छोड़ा। आज तक लोग याद करते हैं, आज तक मैं और आप पढ़ रहे हैं और रश्क कर रहे हैं।
सलामती है उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, और उसके बाद ये कि हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये कंक्लूजन है इस पूरे किस्से का। उसके बाद फिर हम आते हैं तीसरे रुबा के ऊपर। शुरू में तो तंबीह की गई है कि ये लोग कहते हैं कि मलाइका जो है वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और फिर उसकी मजम्मत की गई है कि सारी बात है, ऐसी बात मुंह से निकालना ज़ेब नहीं देता, और अगर वो ऐसा समझते भी हैं तो ये तो वो लोग हैं जो कि अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते ना, ये तो वो वाला माशरा है। अल्लाह के लिए पसंद करते हैं तो वही चीज़ जो अपने लिए नहीं करते। और उसके बाद फरमाया कि सारी तारीफ रब्बुल आलमीन के लिए है। फिर उसके बाद सूरह फ़ात जो मक्की सूरत है उसका आगाज़ हो जाता है, और शुरू में ही कुरान की कसम खाई जाती है। और कुरान की कसम खाने के बाद कुफ़ार की सरकशी पे तबसरा किया जाता है कि ये लोग जो इतनी सरकशी का मुजाहरा करें, इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि इनके अंदर सख्त तकब्बुर और ज़िद है। तकब्बुर तो सारी चीज़ों की जड़ है, ये हमने पहले भी बात की थी कि एक तरफ अल्लाह ताला तारीफ़ करता है उन लोगों की जो मुखबितीन हैं, जो सरेंडर कर देते हैं, और एक तरफ अल्लाह ताला मुज़म्मत करता है उन लोगों की जो किब्र इख्तियार करते हैं। उसके बाद ये कि इनका ये एतराज़ है कि अपने ही दरमियान से एक रसूल आ गया, उसका जवाब दिया गया है कि अगर ना आता तो ये इस पर भी एतराज़ करने वाले थे। फिर ये कि अल्लाह के ज़िक्र पर शक करते हैं। उसके बाद फिर हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत अय्यूब और दीगर अंबिया का जिक्र आया है कि कैसे इन सब ने अपने रब के हुजूर रुजू किया, तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला ने इन सबको माफ़ किया। उसके बाद चौथा रुबा शुरू होता है, और यहाँ पे जिक्र आता है कि मुत्तकियों का बेहतरीन ठिकाना और सरकशों का बदतरीन ठिकाना। जो हम पहले पढ़ते चले आए हैं कि मुत्तकी जो वो हैं जिनको हर वो चीज़ मिलेगी जो वो चाहते हैं, जन्नत में आला मकाम पर होंगे, लेकिन जिन्होंने सरकशी की होगी दुनिया में वो कितने ही बड़े बन रहे हों, जब अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो फिर जहन्नुम उनका ठिकाना होगी। फिर हज़रत आदम की तख्लीक का जिक्र आते हुए इब्लीस के तकब्बुर का जिक्र किया है कि उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी। उसने कहा था थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे, है ना, मैं इनको बहका लूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नहीं, खालिस बंदे नहीं जाएंगे। अल्लाह करे कि हम उन खालिस बंदों में से हों। यहाँ पे ये सूरत मुकम्मल हुई, और उसके बाद सूरह ज़ुमर जो कि मक्की सूरत है उसका आगाज़ होता है। शुरू ऐसे होता है, और इस सूरत में बार बार लफ्ज़ खालिस आया है, कई बार खालिस आया है। अब ये खालिस क्या चीज़ है? जिसमें कोई दूसरा ना हो, किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं है, न अकीदे में, न दुआ मांगने में, न इबादत करने में, न चीज़ें हासिल करने में, न मनसूबा बंदी में, एक अल्लाह के लिए सिर्फ। और फिर वो एक अल्लाह के फैसले ही हर जगह होंगे, किसी दूसरे के भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद जिक्र किया है कि उस तक रसाई के लिए सरपरस्त बनाने की बात है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो अल्लाह को जानना चाहते हैं ना, अल्लाह से दुआ मांगना चाहते हैं, इसलिए हम इनके पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं। फरमाया गया कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर अभी हम आगे इसकी आयत भी पढ़ लेंगे। फिर अल्लाह की कायनात और उसके निज़ाम का जिक्र किया, और उसके बाद फरमाया कि अगर तुम कुफ्र करोगे, अल्लाह तुमसे बेनियाज है, अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। असल में जो दीन के रास्ते पर चलना है, क्या ये अल्लाह ताला की ज़रूरत है? नहीं है ना, ये तो हमारी ज़रूरत है। अगर तुम शुक्र करोगे तो ये अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है, ये रवैया अल्लाह को अच्छा लगता है। और शुक्र सिर्फ ज़बानी नहीं है, ये हमने पहले भी बात की थी कि अल्लाह की राह में चलना, अल्लाह की कदर करना, अल्लाह की बात मानना, ये सारी चीज़ें शुक्र में आती हैं। उसके बाद फिर 2 तरह के रवैयों का जिक्र किया गया है। एक तो वो है जो दूसरों को अल्लाह से शरीक कर लेता है, बराबर ठहरा देता है, लेकिन दूसरा वो है जो अल्लाह के आगे सजदा करता है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाता है। और फिर जिक्र किया है कि असल खसारा किन लोगों को मिलेगा और असल में खुशखबरी किन लोगों के लिए है। फिर कुरान की तारीफ़ की गई है, और मैं और आप तो कुरान पढ़ रहे हैं ना, हम समझ सकते हैं ये सारी बातें कि एक बेहतरीन कलाम है, और हम रंग अज्जा हैं, एक जैसी बात है, मज़ामीन दोहराए गए हैं ताकि हमें आसानी से समझ आएँ। फिर उसके बाद ये हमें हिदायत देती है, हमारे सामने रास्ता खोलती है। अरबी ज़बान में है, लेकिन इसमें कोई टेढ़ नहीं है, सिंपल, आसान, सादा, समझ में आने वाली किताब ये कुरान है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और ज़रा 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे घरों में कुरान ना होता, हम पैदा होते, हम क्या अल्लाह ताला को ढूंढते, फिर हमें मालूम ही ना होता कि हम क्या होगा, दुनिया में क्या करना है, फिर हमें ये भी नहीं पता होता है कि अच्छा इंसान मर जाएगा फिर क्या होगा, किसी ने मेरे साथ जाती की उसका तो बदला नहीं मिला, क्या होगा, मैंने किसी से अच्छाई की उसका बदला नहीं मिला, क्या होगा। 2 मिनट के लिए फ़र्ज़ कीजिए कुछ ना पता हो, कितना बड़ा खसारा होगा ना कि हम अंदाज़े लगाते रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हिदायत और इतनी बड़ी रहमत और अल्लाह ताला का एहसान है। अब कितना बदनसीब होगा ना वो शख्स जिसने इससे फ़ायदा ही नहीं उठाया, इसको खोला ही नहीं। हर साल किताबें पढ़ी हैं, क्लास 1 से पढ़ना शुरू की थी, 6-6, 8-8 किताबें हर साल, और उसके बाद वो बढ़ती चली गई, और उसके बाद वो मोटी होती चली गई, और उसके बाद फिर ग्रेजुएट भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया, मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, लेकिन एक किताब थी सिर्फ, वो जिल्दें भी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि 6 जिल्दें या 8 जिल्दें और मोटी मोटी किताबें, सिर्फ एक किताब जो हमारे हाथ में आ जाए और हम लेके बैठे हुए इस वक्त। क्या इस किताब को पढ़ने में ही ज़िंदगी लग जाएगी?
ابھی تو اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اس پہ پورا عمل کرنا تھا، غیر مسلموں کو بھی پہنچانا تھا، جو بھٹکے ہوئے راستے سے ان کو بھی پہنچانا تھا، لیکن وہ کتاب لے کے تو میں نے ہی زندگی گزار دی، تو وہ آگے کیسے جائے گی؟ تو اس سے بڑی ناقدری تو اس کتاب کی نہیں ہو سکتی نا، کہ ہم اس کتاب کو وہ اہمیت ہی نہ دیں، وہ قدر ہی نہ کریں، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے جو اللہ نے تمہیں یہ ہدایت صاف صاف لکھی ہوئی دے دی ہے۔